Welcome student to my lecture number 3 of electrochemistry. In the last class we are discussing about the relationship between concentration and limiting molar conductivity. That we are doing in the last class. I hope you remember, and what we have done in that, let us quickly recap what you have done in that. So over here in the y-axis we have taken molar conductivity, and in the x-axis we have taken under root concentration. Fine. And what the variation that we have found for weak electrolyte, if you remember that for 1 molar solution of weak electrolyte, the initial molar conductivity was very low, and as the dilution increased it became more and more, and after certain point of dilution it became constant. यही हम लोगों ने देखा था. Fine. I hope you remember. Now student, if I take strong electrolyte, then the situation is a little bit different, and what we have found student, now in that case for the strong electrolyte I found that molar conductivity was quite high in 1 molar solution itself, because due to its 100% dissociation. ये हम लोगों ने देखा था. ठीक है, fine. But student, with dilution it also shows a little rise in molar conductivity. Fine. Now student, this point has not been touched at this point. यहाँ पर ठीक है, ये वाला को मैं यहाँ पर टच नहीं करूंगा. यहाँ पर क्यों? यहाँ पर ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द एक्सपेरिमेंट with zero concentration. Zero concentration का मतलब क्या है स्टूडेंट? ना infinite dilution. So it is not possible that graph should come from here to here, because many of the students were asking that sir ग्राफ को यहाँ से काहे नहीं आप खींचे, इसको बीच में ही काहे छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर. The reason was that it is not possible to do that experimentation at infinite dilution. I hope you remember. Yeah, concept is clear that what the infinite word mean to you. Fine. So therefore if I extrapolate this one, if I extrapolate this graph, and if I touch at this y-axis, I will get molar conductivity at zero concentration or infinite dilution. So this is possible for strong electrolyte, but to calculate this lambda naught for weak electrolyte is not possible, and for that we have to go in what student? The law that is called Kohlrausch law. Kohlrausch law of heading. तुम लोग भी अब शुरू कर दो स्टूडेंट नोट बनाना, ठीक है, मेरे साथ साथ. Fine. So write Kohlrausch law of independent migration of ions. Why this word of independent migration of ions have been included? क्यों ये word independent migration of ions has been included? Now as we have just now told that it infinite dilution, ठीक है, इतना ज्यादा dilute मैं कर दूंगा, the cation and anion will be just independent of each other's force of interaction, and they will move freely around. So therefore the word of independent migration of ions. Fine. What the statement goes, क्या ये statement लेके आता है student? The limiting molar conductivity, ठीक है, limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of individual contribution of its ions. ये चल रहा है यहाँ पर, ठीक है. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स आयंस. ऐसा मैं बोलूंगा, उससे कुछ होगा नहीं यहाँ पर. तो लेट अस जस्ट गो एंड एक्सप्लेन विथ वन ऑफ द एग्जांपल. लैम्डा NaCl अगर तुमसे पूछा जाएगा, देन स्टूडेंट इट विल बी लैम्डा Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस. ठीक है, फाइन, गुड. तो इसका क्या क्या मतलब हुआ देखो, ध्यान से अब समझते हैं स्टूडेंट. लेट अस अंडरस्टैंड फाइन व्हाट इट मीन्स. Now molar conductivity of the strong electrolyte is molar conductivity, sorry student, limiting molar conductivity, I am sorry student, limiting molar conductivity of the strong electrolyte is equal to limiting molar conductivity of Na plus ion, limiting molar conductivity of Cl minus ion. यही वो बोल रहा है कि limiting molar conductivity of the electrolyte, limiting molar conductivity of the electrolyte is the sum of individual contribution of its ions. क्लियर हो गया. ये वाला वर्ड अक्सर स्टूडेंट छोड़ देता है, ये वाला वर्ड अक्सर छोड़ देता है. यू विल गेट a 0 if you leave this word. Many students write molar conductivity, not molar conductivity, limiting molar conductivity of an electron. तो ये आपको दिमाग में रखना है, लिमिटिंग ये वर्ड आपका आना ही चाहिए. फाइन. नाउ स्टूडेंट सिमिलरली आई कैन गेट इट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल. सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस. उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है यहाँ पर. क्लियर, फाइन. सो दिस इज द केस. एवरीथिंग ओके, नाइस. नाउ स्टूडेंट इट कैन बी ऑल्सो रेफर्ड लाइक दिस. इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ, और एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तुम्हारे लिए यहाँ पर, ठीक है, फाइन. द लैम्डा नॉट. अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, कुछ बदल रहा हूं मैं यहाँ पर.
Al2SO4 होल 3, अगर ऐसा तुमको बोल दिया जाए तब मेरा क्या होगा यहां पर ना, इसका आयंस क्या क्या है स्टूडेंट, व्हाट आर द आयंस ओवर देयर, ना आई हैव गॉट एल्युमिनियम आयन एंड आई हैव गॉट व्हाट स्टूडेंट, ना सल्फेट आयन, इट्स क्लियर फ्रॉम हियर, ठीक है, एल्युमिनियम आयन है और सल्फेट आयन है, तो फिर कितना एल्युमिनियम आयन मिलेगा ना, 2 एल्युमिनियम आयन मिलेगा यहां पर, सो 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Al3 प्लस प्लस 3 टाइम्स, देखो 3 टाइम्स लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन। क्लियर सब कोई को, मतलब जितने आयंस रहेंगे सारा का कंट्रीब्यूशन, होल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द आयंस विल बी अकाउंटेड टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। Concept clear? Fine. So I hope you have understood what the theme went. So everything is okay and nice. सब बढ़िया से चल रहा है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इनटू द नेक्स्ट डिस्कशन। व्हाट इज द नेक्स्ट डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ना, ये जो छोटा लैम्डा नॉट है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर आयंस। ये जो छोटा लैम्डा नॉट, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, यह है कैपिटल लैम्डा, यह है छोटा लैम्डा। सो छोटा लैम्डा, स्मॉल लैम्डा विल बी अकाउंटेड फॉर आयंस, कैपिटल लैम्डा विल बी अकाउंटेड फॉर इलेक्ट्रोलाइट। फाइन, गुड। नाउ लेट अस गो इनटू आवर मेन थीम। मेरा मेन मकसद यहां पर क्या था स्टूडेंट, कोलरा लॉ में मेरा मेन मकसद क्या था ना, टू कैलकुलेट व्हाट स्टूडेंट, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर यही मकसद के लिए हम लाए थे यहां पर, ठीक है, फाइन। तो लेट अस क्विकली गो इनटू द एप्लीकेशंस ऑफ दिस वन। यहां पर कोलरा लॉ का एप्लीकेशन करते हैं यहां पर। तो नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट शुरू कर दो यहां पर ना, एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ कोलरा लॉ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कोलरा लॉ। द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इज क्या स्टूडेंट, यहां पर पहला एप्लीकेशन ना, कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ क्या ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन, ओके, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। सो डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो स्टूडेंट फॉर दिस वन देयर इज नो थियोरिटिकल आइडिया, कोई थियोरिटिकल आइडिया मेरे पास नहीं है। स्ट्रेट अवे लेट अस गो इनटू द न्यूमेरिकल, एकदम सीधा न्यूमेरिकल के अंदर एंटर कर जाते हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी स्टूडेंट, फाइन। सो लेट अस गो इनटू द न्यूमेरिकल फ्रॉम योर एनसीईआरटी स्ट्रेट अवे। बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, फाइन। तो लेट अस हैव दिस न्यूमेरिकल यहाँ पर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है यहाँ पर वो देखो, ठीक है, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो। दिस न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 3.8। ये क्या बोल रहा है, द लैम्डा नॉट एम ऑफ NaCl, HCl, NaAC आर 126.4, 425.9, 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर AHAC, ये बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, फाइन। AHAC क्या है ना, एसिटिक एसिड। तो तुमको क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, यू कैन इजीली सी इन योर बुक ऑल्सो। ना लैम्डा नॉट फॉर NaCl दिया हुआ, HCl दिया हुआ, NaC दिया हुआ, तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, व्हिच हैज बीन डिटरमाइंड फ्रॉम ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं। नाउ स्टूडेंट टू कैलकुलेट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट I have to take the help of कोलरा law and how that will be done, now follow that very carefully, ठीक है। क्वेश्चन मैं और नहीं लिख रहा हूं स्टूडेंट, आप किताब से स्ट्रेट अवे देख लीजिएगा, ठीक है, फाइन। नाउ व्हाट आर द डेटा दैट हैज बीन गिवन, लेट मी राइट इट स्ट्रेट अवे। द लैम्डा नॉट NaCl हैज बीन गिवन टू यू एंड दैट लैम्डा नॉट NaCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द छोटा लैम्डा नॉट Na प्लस छोटा लैम्डा नॉट Cl माइनस, and its value has been given to you as 126.4 यूनिट। मैं नहीं लिख रहा, आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट्स स्टूडेंट, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट लैम्डा नॉट HCl has been given to you lambda naught H plus plus lambda naught Cl minus and its value has been given to you as 425.9 units। मैं नहीं लिख रहा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। You can refer to the book also, you are getting my point because there is time constraint, ठीक है, for making the video, otherwise uploading becomes very difficult. So therefore just there is a time constraint, you can get the question from your book, please kindly do it for me। So Na plus plus क्या हो गया ना, lambda AC minus AC, you are all familiar student, acetate ion, AC stands for acetate ion, ठीक है। The value for this one has been given as 91 Simon centimeter square per mole। So these are the values that has been given। तुमको निकालना क्या स्टूडेंट, what you have to find, now you have to calculate the lambda naught for क्या, CH3 COOH, ठीक है, इसी को लिखा हुआ in your NCERT book, इसी को लिख दिया as क्या, AHAC, इसी को लिखा हुआ as AHAC, ठीक है, CH3COO माइनस और H, गॉट द आइडिया, दिस इज योर CH3COO माइनस,
and this is H plus. Clear? And how I will get it? How I will get it? Now, if I can get the value of this one, if I can get the value of this one, ठीक है, ये सब आयन्स का अगर हमको वैल्यू मिल गया तो फिर इसका भी वैल्यू मिल जाएगा. ये सब आयन्स का वैल्यू अगर हमको मिल गया तब इसका भी वैल्यू मिल जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू. नाउ स्टूडेंट, हाउ टू गेट दैट वन. अब ध्यान से देखना लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को कि कैसे तुमको ये मिलेगा. गौर करो स्टूडेंट यहां पर ना. इफ आई ऐड स्टूडेंट, हमको ये और ये चाहिए. क्या क्या चाहिए वो देख लो. आई वॉन्ट दिस वन and I want this one. Check it very carefully. I want this one and I want this one. ठीक है, फाइन. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तब हमको ये मिल जाएगा. If I add these two means what student? Now if I add lambda naught HCl plus lambda naught NaAC, ये अगर मैंने कर लिया यहां पर, ठीक है, lambda naught HCl plus lambda naught NaAC, then I will get these two. लेकिन स्टूडेंट होता है ना बाजार में एक के साथ एक फ्री, तो उसी तरीके से ये वाला अगर मैं खरीदने गया तो ये भी हमको मुफ्त में धरा दिया गया, जो कि मेरा कोई काम का नहीं है. Na plus and Cl minus. तो आई हैव टू रिमूव दिस Na plus and Cl minus. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस if I subtract lambda naught NaCl, then definitely I will be left with H plus and क्या AC minus. क्लियर है? फाइन. तो यही हमको करना होगा. यू हैव गॉट दैट आइडिया क्लियरली, आई सपोज. अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. यहां पर तब मेरे लिए फाइनली क्या आया ना, लैम्डा नॉट स्टूडेंट क्या आ गया ना, लैम्डा नॉट CS3 COOH इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट. ठीक है, आई विल ऐड दिस प्लस दिस माइनस दिस टू गेट दिस वैल्यूज मीन्स दिस वैल्यू. क्लियर हो गया? फाइन. तो HCl और NaC को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट. सो HCl कहां चला गया? वेयर इज दैट HCl? दैट इज 425.9 प्लस स्टूडेंट हो गया है 91 माइनस 126.4. वंस यू सॉल्व इट स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज. मैं किताब देख के सीधा लिख दे रहा हूं, तुम लोग को समझाना मेरा मेन मकसद था. उम्मीद है समझ में आ गया. प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट स्टूडेंट. ईच यूनिट कैरीज हाफ मार्क्स. हर एक यूनिट आधा आधा नंबर का आपका कैरी ओवर होगा. बी वेरी केयरफुल. प्लीज डू नॉट बी जस्ट so casual to leave these units. Fine. So I hope you have understood the Kohlrauer law. तो Kohlrauer law क्या हमने पढ़ा कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग वीक दोनों के लिए वैलिड है, कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट अगर लोगे तो उसका आयंस का अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे, आई विल गेट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, फाइन. एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन मेरा हो गया. उम्मीद है क्लियर, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन. नाउ स्टूडेंट, यू विल डू फ्यू होमवर्क फॉर मी. यहां पर कुछ होमवर्क आप कर लीजिएगा. पहला होमवर्क आप कीजिएगा क्वेश्चन 3.7 इन टेक्स्ट NCERT, ये आप कर लेना. ठीक है, फाइन. ना स्टूडेंट, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, यू विल डू इट, दैट इज 3.8, क्वेश्चन 3.8 NCERT अगेन इन टेक्स्ट, लेकिन ये अनसॉल्व्ड है. दिस इज अनसॉल्व्ड. ओके, दिस इज अनसॉल्व्ड. ये सॉल्व्ड है, ये सॉल्व्ड है, ये अनसॉल्व्ड है. ठीक है, ये कर लेना आप लोग. फाइन. यू जस्ट कंप्लीट दिस होमवर्क प्लीज. मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन फ्रॉम योर NCERT, किसी भी हाल में नहीं छोड़िएगा. क्लियर? नाउ स्टूडेंट, आई विल मूव इनटू द नेक्स्ट स्टोरी. ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी क्या है? नेक्स्ट मेरा एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन. चलो देख लेते हैं यहां पर. व्हाट इज माय सेकंड एप्लीकेशन? सेकंड एप्लीकेशन इज स्टूडेंट यहां पर टू कैलकुलेट व्हाट स्टूडेंट यहां पर ना, डिटर्मिनेशन ऑफ. सेकंड एप्लीकेशन लिखते चलो कॉपी में, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. दिस इज माय नेक्स्ट एप्लीकेशन. क्या स्टूडेंट ना, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ क्या स्टूडेंट ना, डिसोसिएशन. व्हाट द फॉर्मूला गोज फॉर दिस वन स्टूडेंट ना, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा नॉट. तो तुमको तो मालूम ही है यहाँ लैम्बडा क्या है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी. लैम्डा नॉट क्या है सर? इट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. इसी का रेशियो अगर मैंने ले लिया, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा. I hope no problem. Fine. Student, I will take the numerical in one go. Let us include the third application also over here at first. फिर one go में पूरा न्यूमेरिकल को लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन इज स्टूडेंट यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ. ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ Kohlrauer law? तो जस्ट राइट दीज हेडिंग्स, दैट्स ऑल. दैट विल फेच यू 1 मार्क्स ईच. ओके, सो डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. यहां पर
खास करके वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। के याद आ रहा है, के बी यहां पर, ठीक है, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं यहां पर विद द हेल्प ऑफ क्या स्टूडेंट, यहां पर ना कोलरॉ लॉ। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, ये सब भी हम लोग निकाल सकते हैं। एंड हाउ द फॉर्मूला विल रन फॉर दिस वन, इसका फॉर्मूला कैसे होगा यहां पर, ठीक है, मैं डायरेक्टली तुमको बता देता हूं। यहां पर ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, लास्ट क्लास में मैंने किया था। इफ यू रिमेंबर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ तुमको जब मैं पढ़ा रहा था, when I was teaching you Ostwald dilution law, what I have done student यहाँ पर, I hope you remember. So this was the case, then I have taken C1 minus alpha, this is C alpha, then Ka is equal to, if you remember this into this, so C alpha, C 1 minus alpha, okay fine, तो ये C कट गया था, याद करो, and you are left with C alpha square 1 minus alpha, and acid, let the weak acid is very weak, therefore this can be neglected in comparison to this one, then Ka is equal to C alpha square। ये आ गया था, उम्मीद है याद आ रहा है यहां पर, फाइन। तो K निकालने का भी मेरा यही तरीका रहेगा स्टूडेंट, लेकिन एक केवल आपको मैं बता देना चाहता हूं, वो क्या स्टूडेंट ना, ये अप्रोक्सीमेशन यहां पर नहीं लीजिएगा, बस ये अप्रोक्सीमेशन आप यहां पर नहीं लीजिएगा, नहीं लेना है। डू नॉट टेक अप्रोक्सीमेशन in the numericals of determination of K and KB by क्या स्टूडेंट यहां पर, by क्या, कोलरॉ लॉ। कोलरॉ लॉ से आप जब K या KB निकालोगे, प्लीज डू नॉट टेक अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, फाइन, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है फिर दिक्कत हो जाएगा, बोर्ड्स में नंबर कट जाएगा, ठीक है, फाइन। प्लीज डू नॉट टेक अप्रोक्सीमेशन फॉर फाइंडिंग K एंड KB थ्रू कोलरॉ लॉ, ये दिमाग में रखोगे, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ये स्टेप नहीं जाओगे, यहां नहीं जाओगे, यहीं पर खत्म कर दोगे। तो मेरे पास क्या बचा स्टूडेंट यहां पर ना, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मेरा C अल्फा स्क्वायर C इंटू अल्फा, अल्फा देखो तुम्हारे सामने अभी मैंने लिखा था, तुम्हारे सामने लैम्डा बाई लैम्डा नॉट, तो यहां पर डाल देते हैं लैम्डा बाई लैम्डा नॉट डिवाइडेड, ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा बाई लैम्डा नॉट। सो दिस विल बी योर वर्किंग फॉर्मूला, ये होगा तुम्हारा वर्किंग फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, फाइन। तो ये कर लेंगे तो हो जाएगा। तो अगेन द सेम थिंग, तो अगर कोई पूछेगा तो तुम आराम से लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ना, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, एंड जस्ट रिप्लेस दिस अल्फा लैम्डा बाई लैम्डा नॉट ओवर हियर, क्लियर, फाइन। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं जो तुमको समझाए थे यहां पर, ठीक है। डू नॉट टेक अप्रोक्सीमेशन, ये सब छोटी छोटी बातें बढ़िया से याद रखना है, ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला। सो दिस इज योर फॉर्मूला। अब चलो स्टूडेंट स्ट्रेट अवे लेट अस डू वन न्यूमेरिकल फ्रॉम योर बुक, आपके किताब से एक सीधा न्यूमेरिकल कर लेता हूं, ठीक है, फाइन। सो लेट अस जस्ट गो अहेड विद द न्यूमेरिकल। Okay student, so we will see the application of Kohlrau law, ठीक है, that is determination of alpha and determination of dissociation constant या ionization constant through this numerical। इस numerical के थ्रू से हम लोग जानेंगे। ये numerical student NCERT 3.9 in text solved, ठीक है, ये in text solved numerical है, you can also see in your NCERT book, ठीक है, फाइन। क्या ये numerical बोल रहा है, ध्यान से अब देखो। The conductivity of 1.028 into 10 to the power minus 3 molar acetic acid is 4.95 10 to the power minus 5 Simon per centimeter. Okay, calculate Ka of acetic acid if lambda naught m is equal to 390.5 Simon centimeter square per mole. The unit has been given. You can see the numerical from the book as well. So student, you have to calculate Ka. Straight cut है, Ka तुमको निकालना है। तो for finding Ka student, what the formula that you are going to write? Now I will write this formula. I will write this formula. So let us write this formula. Now Ka is equal to C alpha square 1 minus alpha. Now student, it is clear to you. In order to calculate this Ka, I have to calculate this alpha. ये alpha हमको चाहिए. Concentration has been given to me. Concentration has been given to me. I have to calculate this alpha. ये अल्फा हमको कहां से मिलेगा ना, फ्रॉम दिस फार्मूला, फ्रॉम दिस फार्मूला। ये अल्फा हमको कहां से मिलेगा ना, फ्रॉम दिस फार्मूला। सो लेट अस गो फॉर दैट, लेट अस गो फॉर दैट। सो अल्फा मेरे लिए क्या हो गया स्टूडेंट ना, लैम्डा बाई लैम्डा नॉट। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन 3 फेज में बटा हुआ, ध्यान से देखिएगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अल्फा स्टूडेंट, आई हैव टू गेट लैम्डा एंड लैम्डा नॉट। ना स्टूडेंट लैम्डा नॉट हैज बीन गिवन टू यू, यू कैन सी लैम्डा नॉट हैज बीन गिवन टू यू, ठीक है। तो फिर अननोन मेरे लिए क्या है
Now lambda is unknown for me. For finding that lambda, student, you have been provided with conductivity. You have been provided with conductivity. यही दिन के लिए तो conductivity दिया हुआ है. Conductivity means कप्पा, K तुमको दिया हुआ है इसी दिन के लिए. So what is the formula that will relate me to kappa and this lambda, and that one is, student, क्या था ना, lambda is equal to, I hope you remember, last class में ही हम लोग पढ़े यहाँ पर, ठीक है, by 1000 by क्या हो जाएगा ना C. Hopefully you remember, कोई दिक्कत नहीं. Fine. Now student, further if I proceed with my working, तो मेरा वर्किंग में क्या आ जाएगा स्टूडेंट ना, इसमें भर दिया जाए यहाँ पर ना. K का वैल्यू कितना लिया हुआ स्टूडेंट, K का वैल्यू लिया हुआ 4.95 इंटू 10⁻⁵. आई होप नो प्रॉब्लम, ठीक है. ये मेरा हो गया इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा ना C. सो 1000 बाई क्या, कॉन्सेंट्रेशन. सो 1000 बाई कॉन्सेंट्रेशन को वहां पर डाल देते हैं ले जाके, है कि नहीं यहाँ पर. सो 1000 कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, वेयर इज दैट कॉन्सेंट्रेशन ना, इट इज 1.028 10⁻⁻3. ये डाल देंगे, ठीक है. फाइन. सो आई होप यू हैव गॉट इट. सो K इंटू क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पर ना 1000 बाई C. ओके, नाइस. नाउ स्टूडेंट द आंसर फॉर दिस वन यू आर गोइंग टू गेट इट. आप भी बुक में देख सकते हो, ये आंसर दिया हुआ है. डायरेक्टली मैं वहां से डाल दे रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है. लेट मी टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर एंड इट्स वैल्यू इज 48. इट्स वैल्यू इज स्टूडेंट 48 इंटू 48.5. इट्स वैल्यू इज 48.15, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है. 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसका वैल्यू आ गया. तो लैम्डा का वैल्यू मेरा क्या आ गया ना, 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. वर्किंग तुम किताब से भी देख सकते हो, तुमको समझाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है. फाइन. नाउ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. वंस आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ क्या ना दिस लैम्डा, आई विल पुट इट ओवर हियर. सो इट विल बी 48.15 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट द लैम्डा नॉट हैज बीन गिवन टू यू, दैट इज 390.5, and the value for this one after calculation you are going to get 1233. ये मिल जाएगा. and once you have got the value of alpha का वैल्यू जहां मिल गया, now just replace that one, finished. there is nothing left in the numerical anymore. 1.028 10⁻⁻3 into alpha का स्क्वायर 1233 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ना 1 minus 0.1233. student, you can understand by only writing this numerical in your copy that only problem in this is the calculation. केवल एक ही पार्ट में तुमको प्रॉब्लम नजर आएगा, दैट इज कैलकुलेशन, एंड यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. आपको कैलकुलेशन करना ही करना है स्टूडेंट यहाँ पर, बिकॉज दिस इज फेमस क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम. बहुत फेमस क्वेश्चन है, 3 नंबर का सवाल है स्टूडेंट, तुमको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा 1 1 1 लाइकवाइज. तो बहुत फेमस क्वेश्चन है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम. एंड ओनली हडल इज टू कैलकुलेट क्या स्टूडेंट यहां पर ना कैलकुलेशन. ओनली हडल इज ह्यूज कैलकुलेशन. ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा. प्लीज डू नॉट टेक अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज जेवीएम फैमिली स्टूडेंट हैव गॉट ए वेरी बैड हैबिट ऑफ टेकिंग अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज यू आर ऑलवेज एक्वेंटेड विथ एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. देयरफॉर स्टूडेंट इन बोर्ड्स यू हैव टू बी केयरफुल कि कोई एमसीक्यू नहीं है यहां पर, ठीक है. यू हैव टू गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट पॉइंट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है. फाइन. मान लो एक सवाल का मैं तुमको बताना चाह रहा हूं, एक सवाल का आंसर मेरा है यहां पर 1.25, ठीक है. फाइन. maximum student got it 1.25, and by taking approximation if you get the answer as 1.15, ठीक है. क्या तुमको पूरा नंबर देना मिलना चाहिए? डेफिनेटली नहीं मिलना चाहिए. जो स्टूडेंट इस आंसर तक पहुंचा है उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा. So be very careful student. For the final answer also half marks is allotted. So therefore don't take approximation in your board exam. You have got a very bad habit of taking that approximation. ठीक है. Fine. तो ये था मेरा concept of क्या यहाँ पर ना Kohlrausch law. तो with one numerical I have explained all the things. Now student your task is to calculate do few homework. आप कुछ homework कर लेना student. यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, homework आप कर लोगे, ठीक है. Fine. क्वेश्चन नंबर 3.10 ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है. एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नहीं करना है आपको, नहीं करना है. 3.11 करना है फ्रॉम योर एक्सरसाइज, ये कर लीजिएगा, ठीक है. 3.11 फ्रॉम योर एक्सरसाइज, ये सवाल आप कर लेना, ठीक है. फाइन. आई विल wind up today's class with the last numerical, and before going into the last numerical student, quickly recap what we have studied in today's lecture. Now I have started with Kohlrausch law,
ठीक है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, समझा दिए हैं कोलरॉ लॉ क्या है, किस लिए इस्तेमाल होगा वो बाद में बता रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉ लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन इज क्लियर टू यू, क्लियर, एंड फॉर एक्सप्लेनिंग दिस फर्स्ट एप्लीकेशन आई हैव टेकन वन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल मैंने लिया था स्टूडेंट यहां पर, दिस न्यूमेरिकल इज 3.8 एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल मैंने तुम्हारे लिए लिया था, ठीक है, फाइन। आफ्टर दैट आई वेंट इनटू फ्यू होमवर्क, देन डिटर्मिनेशन ऑफ अल्फा, ये मैथमेटिकल वर्सन याद रखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये फॉर्मूला याद रखना। Explaining these two formula has been done with one of a numerical. Let me take the last numerical for today's lecture, ठीक है, from your NCERT book. Okay student, this is our last numerical for today's lecture from your NCERT 3.9 in text. Okay, 3.9 in text. This has been given in language format. I have written it in data format. Lambda of methanoic acid has been given to you 46.1. Concentration of the acid has been given to you 0.025 mole per liter. स्मॉल लैम्डा H प्लस आयन के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ 349.6 यूनिट तुम्हारे सामने है, और स्मॉल लैम्डा नॉट ऑफ HCOO माइनस फॉर्मेट आयन के लिए दिया हुआ 54.6, दिस वन। कैलकुलेट के तुमको निकालने बोला। अगेन इट विल गो इन द सेम मैनर स्टूडेंट। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट के व्हाट इज माय फॉर्मूला, ना के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ना स्टूडेंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस के आई हैव टू गेट दिस अल्फा, ये अल्फा हमको चाहिए, तो ये अल्फा हमको कहां से मिलेगा ना, अगेन आई हैव टू स्विच ओवर टू द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, व्हाट इज दैट, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। नाउ फर्दर यू कैन अगेन सी, आपको फिर से दिखेगा कि स्टूडेंट लैम्डा हैज बीन गिवन टू यू, lambda has been given to you but lambda not haven't been given to you, lambda not आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट इनडायरेक्टली वो चीज भी आपको दिया हुआ है थ्रू द हेल्प ऑफ दिस टू वैल्यू। ये जो दो वैल्यू आपको दिया हुआ स्टूडेंट, दे कैन इजीली गिव यू द वैल्यू ऑफ क्या स्टूडेंट, द लैम्डा नॉट, दे कैन इजीली गिव यू द वैल्यू ऑफ क्या, द लैम्डा नॉट, ये दोनों आपको लैम्डा नॉट का वैल्यू दे सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस कैलकुलेट लैम्डा नॉट यूजिंग दिस टू वैल्यू, ठीक है, फाइन। उसके बाद अल्फा निकालेंगे, फिर यहां पुट कर देंगे, खेल खत्म, दैट्स योर स्टोरी। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस लैम्डा नॉट, एंड दैट लैम्डा नॉट ऑफ HCOOH विल बी रिटन एज क्या हो जाएगा ना, छोटा लैम्डा नॉट H प्लस प्लस छोटा लैम्डा नॉट HCOO माइनस, एंड इट्स वैल्यू हैज बीन गिवन टू यू एज 349.6 प्लस 54.6, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है यहां पर। और ये जब कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, आई विल गेट इट एज 404.2 यूनिट विल बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो ये मेरा यूनिट हो जाएगा, फाइन, नो प्रॉब्लम। नाउ वंस यू हैव गॉट दिस वैल्यू, इंक्लूड दिस वैल्यू, रिप्लेस दिस वैल्यू इन दिस पॉइंट, यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, तो मेरा ये वाला कैलकुलेशन क्या होगा ना, लैम्डा हैज बीन गिवन टू यू, लैम्डा आपको दिया हुआ, देखो लैम्डा ऑफ CH3 दिए हुए 46.1, तो इसको यहां डाल दो, 46.1 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट कितना तुमने निकाला लैम्डा नॉट स्टूडेंट यहां पर ना 404.2। वंस यू कैलकुलेट दिस, जहां तुम कैलकुलेशन पर चले जाओगे स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू गेट इट एज स्टूडेंट, ये वाला वैल्यू तुमको मिल जाएगा 0.1140, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.1140, नो प्रॉब्लम, फाइन। नाउ वंस यू हैव गॉट दिस वन, रिप्लेस दिस वैल्यूज ओवर, यहां पर रिप्लेस कर देंगे, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, एक ही प्रॉब्लम है जो मैंने तुमको बोला, दैट इज कैलकुलेशन, एक ही प्रॉब्लम है कैलकुलेशन। सो कंसंट्रेशन हैज बीन गिवन टू यू, दैट इज 0.025 इनटू अल्फा, यू हैव जस्ट नाउ कैलकुलेट 1140 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1140, ठीक है, फाइन। अब इसका कैलकुलेशन करने पर स्टूडेंट यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज, मैं बोल दे रहा हूं 3.67, यहां पर लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, तुमको जो आंसर मिलेगा 3.67 इंटू, ठीक है, 10 टू द पावर -4, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा के का। उम्मीद है सबको समझ में आया। सो दिस इज योर होल लॉट ऑफ न्यूमेरिकल, यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ, एंड दिस इज योर कैलकुलेशन, ये आपका कैलकुलेशन था यहां पर, कैलकुलेशन पार्ट, फाइन। सो सबसे पहले हमने लैम्डा नॉट निकाला, इसको रिप्लेस किया यहां पर टू गेट द अल्फा, देन अल्फा हैज बीन रिप्लेस्ड ओवर हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ के। ओके, सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विथ ए न्यू टॉपिक, till then stay safe and thank you.